I am Purvi Shah, host of Sitaro Ke Saath Saath. Sitaro Ke Saath Saath is presented by River Comics, We International and Indus TV. आज का सितारा कौन है? चलो देखते हैं आज का सितारा कौन है, जिसको सुन के महसूस होगा एक सुकून। धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आँखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे द्वार आए। Let's see who has arrived. The star of the today is Shaunak Vyas, a very sweet personality and a very famous personality in Gujarati TV and film industry. He has worked in numerous Gujarati TV serials like Sakpan, Ek Ukhanu, Motiba, Kabhi Kabhi, Doctor Ni Diary, Valaman, Riti Rivaj. Apart from acting, Shaunak has always hosted many reality shows like Gruha Mantri, Rasoi Show, and many others. So let's talk to him. What is his real story? And we are also talking about his new film, Teacher of the Year. સખીઓ અને સખાઓ આનંદ કરવાના કેટલાક શોર્ટકટ છે અને ડાન્સ એમાંનો એક છે. સર, અમને તો તમને જોઈને જ આનંદ આવે છે. વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. એલન પ્રેઝન્ટ્સ ટીચર ઓફ ધ યર. અલગ અલગ સ્કૂલ્સમાંથી સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેઓ ટીચર્સની બરાબર પરીક્ષા લે છે. આપણો એક જ ટાર્ગેટ છે, જે પણ ટીચર અહીંયા આવે એ ઊભી પૂછડી અહીંયાથી ભાગવો જોઈએ. આ શું હતું? મરઘા ઈંડા મૂક્યા. સંગીતમાં કેટલા સુર હોય છે? મહિષાસુર, ભેંસાસુર, બકાસુર અને છેલ્લો સુર સસુર. નોનસેન્સ, મેનેજ છે કે નહીં? એ માળી, તને પૂછી રહી છું. હું માળી નથી, પાર્ટ ટાઈમ મેથેમેટિક્સ. હવે તમારા મનમાં મેથ્સ માટે જેટલો ગુસ્સો હોય એ કહી દો. I hate math. મેથ્સ એટલે મુસીબત. મેથ્સની તો કે ભણવું પડે છે એટલા માટે નહીં, ભણવું ગમે તો જ ભણો. માર્ક્સ માટે નહીં, નોલેજ માટે ભણો. બુક્સ વગર તમે ભણાવ્યું કઈ રીતે? જ્ઞાન પુસ્તકોમાં પુરાયેલું નથી હોતું સર. વોટ નોનસેન્સ. પાર્થ ટાંગ નામથી હિન્દુ, પૂજા ક્રિશ્ચિયન્સની જેમ કરો છો અને બાજુમાં કુરાન પણ પડી છે. ક્રિશ્ચિયન્સ પાસેથી ડિસિપ્લિન શીખું છું, મુસલમાન પાસેથી ત્યાગ અને હિન્દુ પાસેથી ક્ષમા એટલે કે માફી. કેમ્પસમાં ઘણું બધું એવું થઈ રહ્યું છે જેની તમને જાણ નથી. તમારે એક સરપ્રાઇઝ ઇન્સ્પેક્શન કરવું જોઈએ. અને ચટાક તમે પ્રોફેસર શાસ્ત્રીને શીખવશો કે એમણે શાળામાં શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું. કઈ પ્રકારનો માસ્ટર છે? ગ્રાન્ડ ગુરુ પ્રોફેસર શાસ્ત્રી અને પાર્થ ટાંક વચ્ચે કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. એમની ટીચિંગ મેથડ આજની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ સાથે કમ્પ્લીટલી ઇરરિલેવન્ટ છે. નાના નાના બચ્ચાના એડમિશન માટે પેરેન્ટ્સનો ઇન્ટરવ્યૂ લેવાય છે. અરે ઇન્ટરવ્યૂ તો ટીચરનો લેવાવો જોઈએ, એટલે ખબર પડે કે બાળકને ભણાવવાને લાયક છે કે નહીં. ઇનફ મિસ્ટર ટાંક, યુ હેવ ક્રોસ્ડ ઓલ ધ લિમિટ્સ. તમારા જેવા શિક્ષકે આખી દુનિયાની સામે આવું અપમાન સહન કરવું પડે કે હવે આ કોમ્પિટિશન એ માત્ર શિક્ષકો વચ્ચે નહીં પણ શિક્ષણ પદ્ધતિ વચ્ચે છે. જીતવા માટે તમે સ્પર્ધામાં તો હોવા જોઈએ ને. ઓલ ધ બેસ્ટ. એવું બને ખરું કે સેકન્ડ રેન્ક લાવનાર ફર્સ્ટ રેન્ક લાવનાર કરતાં વધારે હોશિયાર હોય? Hello, namaste. Hi. Welcome, Shaunak Vyas, the hero of Teacher of the Year और मैथ्स टीचर हो. मैथ्स टीचर. पर हमको तो क्लास की धमाल मस्ती करनी है. बिल्कुल करेंगे ना, चलो आज वही करेंगे. शो पे वही दिखाएंगे. यस. मेरी गुजराती फिल्म टीचर ऑफ द ईयर का एक बहुत ही सही डायलॉग है जो सबके लिए है, और वो है ભણવા માટે પૈસા નહીં, ધગસ જોઈએ, ધગસ. અને જ્ઞાન પુસ્તકોમાં પુરાયેલું નથી હોતું. इसका मायना ये है कि पढ़ने के लिए लगन चाहिए, पैसे नहीं. और ज्ञान पुस्तकों में बंद नहीं होता है, वो तो दुनिया में हर कहीं है. बस वो ज्ञान बटोर लो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ. मेरी अभी हाल में एक फिल्म आई है विच इज़ ऑन Shemaru-Me, a beautiful platform for all the Gujarati film lovers, and the film is called Teacher of the Year. So मैं उसमें मैथ्स के टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, विच इज़ अ प्रोटोगनिस्ट, हीरो है, और उनका नाम है पार्थ टांक फिल्म में. बेसिकली दिस गाय इज़ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया के जो मार्क्स के पीछे भागने वाली जो रीत है, जो ग्रेड्स के पीछे
अंधी दौड़ लगाने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये बहुत एक अलग ही टीचर है जो ये कहता है कि मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, यू नीड टू फोकस ऑन नॉलेज, और नॉलेज है तो मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। सो एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर बार ऐसा होता है कि सेकंड रैंक लाने वाला फर्स्ट रैंक लाने वाले से डफर ही होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड रैंक लाने वाला फर्स्ट रैंक लाने वाले से आगे निकल जाए? और यही होता है, हम यही देखते हैं। सो दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट टीचर्स, स्टूडेंट्स, द केमिस्ट्री। देयर आर मैनी मोमेंट्स जब आपको फील होगा कि आपने भी ये मोमेंट्स जी है अपनी स्कूल में। सो बेसिकली आई एम ऑल्सो द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। सो बहुत प्यारी सी फिल्म है जिसमें रोमांस है, ड्रामा है, बहुत सारी मस्ती है, बहुत सारी धमाल है। 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचर की एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जिनकी में पहली बार ऐसा हो रहा है। आज तक हमने यूजुअली यही देखा है कि टीचर्स जो है स्टूडेंट की एग्ज़ाम लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट टीचर्स की एग्ज़ाम लेने वाले हैं। सो बहुत ही एक लाइटर वे में हमने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। टीचर ऑफ द ईयर, टीचर नाम के ही सुन के ही मेरे का तो टेंशन हो जाता है कि यार टीचर यहाँ कहाँ से आ गया है, पहले स्कूल तो छोड़ दिया है, अभी टीचर कहाँ आ गया। तो ये तो बहुत सीरियस मूवी होगी। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर नाम सुन के हमको टेंशन हो जाता है सही में। पर मैम एक बात याद कीजिए, आपके कोई ऐसे टीचर थे स्कूल में हाँ। या कॉलेज में जिनसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आता था, जिनका लेक्चर भरने के लिए आप बेताब रहते थे कि इनका लेक्चर है तुम्हें? हाँ। थे ना? हाँ। बस तो ये मूवी वैसी है और मैं वही टीचर हूँ। सो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स टीचर का तो यार कैसे टेंशन ही होगा ना। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, कराएंगे। एक राज की बात बताऊं, मैं जीवन में एक बार फेल हुआ हूँ एकेडमिक्स में, और वो भी मैथ्स के सब्जेक्ट में ही। हाँ, और मैथ्स टीचर है इसमें। पर ये है कि फिर मैंने जाना ड्यूरिंग दिस मूवी कि मैथ्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है मैम। प्रॉब्लम कहाँ है बताऊं मैं आपको? हाँ। हमको किसी ऐसे मैथ्स टीचर ने पढ़ाया नहीं जो हमको मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करवा सके। देखिए अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पसंद है ज्यादा? मेरे को तो बायोलॉजी। ओके बायोलॉजी। अब किसी को पूछे बायोलॉजी उसके लिए कितना हार्ड है, मिलेंगे ना वैसे लोग। उनके लिए क्यों हार्ड है पता हूँ, आपके लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको कोई ऐसा टीचर मिल गया जिसने आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट करवा दिया कि यार बायोलॉजी तो है ना। बस तो कमी कहाँ है पता है? हम लोगों में नहीं है, स्टूडेंट्स में नहीं होती। कई बार वो टीचर का अप्रोच गलत हो जाता है, वो इतना सीरियस बना देते हैं भारी भरकम मैथ्स को कि मैथ्स पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना होगा, तो हमारे लिए वो हार्ड हो जाता है। इंटरेस्ट चला जाता है तो फिर उसके अंदर हमारा फोकस भी चला जाता है इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हम ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत बुरा है क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, मेरा टेंशन है। अच्छे तो शुरुआत कहाँ से हुई? टीचर के अप्रोच से। तो हम इस मूवी में यही ला रहे हैं कि अगर टीचर का अप्रोच मजाक कराने वाला है, फ्रेंडली है, धमाल मस्ती वाला है, तो स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट अच्छी तरह के समझ पाएगा। Time for interval. Let's take a small break and come back and talk with interesting Shaunak Vyas.
to धमाकेदार सितारों के साथ साथ is presented by River Comics, V International and Indus TV. Let's get back to Shaunak Vyas and talk with him and have a fantastic, interesting and entertaining time. तो मेरे को तो लगता है कि यार ऐसे स्टूडेंट्स टीचर होते हैं तो स्टूडेंट्स रैगिंग नहीं कर लेते? नहीं करते हैं, पर जब उनको पता चलता है, जैसे कि मैं आपको चिढ़ा कब तक पाऊंगा? हाँ। जब तक आप चिढ़ोगे। हाँ। जब आपने चिढ़ना बंद कर दिया, हाँ। आपने टीज होना बंद कर दिया, तो मुझे लगेगा कि मैं भी क्यों इसको टीज कर रहा हूँ, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं भी बंद कर दूंगा। अच्छा, वही बात है। तो ये जो टीचर है ना, स्ट्रेटेजी है। हाँ, स्ट्रेटेजी है कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। अगर वो टीज करते हैं, आप भी करो, और फिर देखो वो ढूंढ लेंगे, कह रहे ये भी तो अपने जैसे ही है, इनको पता चल जाता है। और ये मूवी में वही होता है। हम 9 टीचर्स हैं मैम इस मूवी में। 9 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है गुजरात के अलग अलग कोनों से, अलग अलग भाग से। जैसे कि मैं मैथ्स का हूँ, हमारी जो हीरोइन है रेवा पटेल, जिनका नाम है फिल्म में, और आलिशा जिनका नाम है रियल में, वो फिजिक्स की टीचर बनी है। एक रागी जानी है, हमारे बहुत अच्छे एक्टर दिग्गज, वो बने हैं साइकोलॉजी के टीचर। एक है अकाउंट्स के टीचर, एक म्यूजिक के टीचर, एक स्पोर्ट्स के टीचर है, एक डांस के टीचर है। तो अलग अलग 9 टीचर्स को लिया और 25 ऐसे एटम बॉम्ब्स को लिया जो स्टूडेंट है, जिनका टास्क ही है, जो माहिर है टीचर्स को क्लास से भगाने में। ऐसे सिलेक्ट किए 25 और उन 25 को रख दिया इनके सामने। और अब हो ये रहा है उल्टा कि नॉर्मली क्लास के अंदर टीचर स्टूडेंट की एग्जाम लेते हैं, यहाँ पर ये 25 स्टूडेंट टीचर की एग्जाम ले रहे हैं। अरे पास टीचर को होना है, मार्क्स टीचर को लेने हैं, वोट्स टीचर को लेने हैं, और स्टूडेंट जो आराम से मजाक कर रहे हैं कि आज कभी पंखे में कुछ लगा दिया ऊपर, कभी लाइट का वायर खोल के रख दिया। ये बड़े जीनियस होते हैं बच्चे। हाँ, सही में। हाँ, इनको पता होता है क्या करना है, पर वो उनकी स्किल्स को अलग दिशा में लगा दें। तो ऐसे ऐसे करके ये सबको परेशान करते हैं। पर ये एक जो टीचर है जिसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, मैथ्स वाला, ये उन्हीं को टीज करना शुरू कर देता है। इसके पास उनकी हर मस्ती का जवाब है। तब इन लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है, ये अपने लेवल वाला है। इसलिए बंद कर देते हैं ऐसा करना। और भी एक क्वेश्चन है कि आप तो मैथ्स सिखाते हो, पर कैसे सिखाते हो? मैथ्स तो यार पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइक यू आर ऑलवेज विद द बुक्स एंड यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। वही मैथ्स होता है, तो उसमें मजा कहाँ आई? बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली यही फोबिया है कि मैथ्स का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। एवरीवन गेट्स स्कैर्ड कि मैथ्स है, बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ आंकड़े हैं, कोई मज़ा नहीं है। अगर जैसे आपने कहा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में थोड़ा मज़ा है कि एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ऑर्गन्स के बारे में जानने को मिलेगा। साइंस है तो उसमें कुछ है, इंग्लिश में कुछ है, कोई पोएम मिल जाएगी, हिंदी में कुछ है। पर जब आप मैथ्स की बात करते हो तब हमको पता है कि ये आंकड़े हैं यार, आंकड़े 1 0 से लेके 9 तक सिर्फ नंबर्स, उसमें क्या मज़ा है? पर उसका भी बहुत बड़ा मज़ा है। देखिए, पूरी दुनिया सर नंबर पे ही चलती है। जैसे कि आप दुनिया में कोई भी शेप देख लो, सो वो मैथमेटिकल है। आप कुछ भी खरीदने, मैथ्स हर जगह पे है। आप कुछ खरीदने जाओ, सो सपोज आप खरीदने गए हो एक अम्ब्रेला, सो उसके लिए पैसे लगेंगे। कितनी लंबी है तो उसके नाप के लिए भी मैथ्स लगेगा, कितनी बड़ी है तो उसके नाप के लिए भी मैथ्स लगेगा, कितने पैसे है तो मैथ्स लगेगा। मैथ्स हर जगह पर है। बट जो मैंने कहा वही प्रॉब्लम है कि मैथ्स को हम लोगों ने बहुत डरावना बना दिया है। सो इसीलिए, और वाई वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओनली, मैथ्स, ये जो हमारी फिल्म है ना, इसका एक ही मोटिव है लोगों को बताना कि मैथ्स हो या कोई भी, किसी के लिए मैथ्स हार्ड है, किसी के लिए इंग्लिश है, किसी के लिए डांस है, म्यूजिक है, हर चीज कहीं ना कहीं किसी के लिए हार्ड होती है। पर ये भी एक है कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। जैसे पर हाँ, कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, और वही जानकारी देनी वो टीचर का एक बहुत बड़ा गोल है उसकी लाइफ का। कि जैसे कि इतना ही मैथ्स आपको आए कि लाइफ में आप कभी मैथ्स के हिसाब से परेशान ना हो। अदरवाइज आप वहां तक ना पहुंचे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब, पर आपको इतना मालूम हो कि ये बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सो उतनी मैथ्स बहुत जरूरी है। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आप साफ तरीके से बोल पाओ, सो लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उतनी। अब आपको ये देखना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। मैं अगर साइंस में अच्छा हूं तो मुझे साइंस पे फोकस करना चाहिए। मैं अगर स्पोर्ट्स में अच्छा हूं,
जैसे कि हमारे अभी चोपड़ा साहब हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड लाए हैं, सो वो बहुत बड़ी बात है। सो उन्होंने फोकस किया बचपन से कि वो किस चीज में अच्छे हैं। सो इस फिल्म की एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताऊंगा। अगेन आंकड़े आ रहे हैं इसमें मैथ्स के, पर ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे भारत में, इंडिया में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आप मानो कि आपको इंटरेस्ट है संगीत में, म्यूजिक में, तो किसी या फिर आपको छोड़ो म्यूजिक, तो वैसे भी हम यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं इसको, मेन स्ट्रीम में नहीं ले गए अभी। पर जैसे कि आपको इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, पर अच्छी कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको 12th तक हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही फोकस से पढ़ना पड़ेगा जितनी फोकस से आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर ओवरऑल मार्क्स ज्यादा आएंगे तभी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था हमारी लाइफ का, जो 18 साल 15 साल, वो हमने लगा दिए सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, रादर देन फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो हमारा 90% टाइम हमने वेस्ट कर दिया बाकी सब कुछ पढ़ने में। और जब हम 18 साल के हुए तब हमारे सामने आया कि अब तुम्हारे पास 3 साल है, 3 साल में इंग्लिश लिटरेचर सीख लो और उसके मास्टर बन जाओ। तो साहब वो 15 साल वेस्ट हुए, उसका क्या? अगर वो 15 भी दे दिए होते और तब भी हमने अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लिया होता तो आज पता नहीं हम कोई शेक्सपियर यहां से पैदा हो जाता, कोई कहां चले जाते आगे। पर वो नहीं हो पाता क्योंकि हमने तो अपना 90% टाइम, ड्यू टू दिस एजुकेशन सिस्टम, हमने अपना पूरा समय बिता दिया उन चीजों को पढ़ने में जिनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जिनमें आगे जाके हम कुछ नहीं करने वाले। पर ये आयरनी है कि हम ऐसा कर रहे हैं। सो यही इस फिल्म का मोटिव है कि अगर इंटरेस्ट है तभी पढ़ो, और पढ़ो तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मत पढ़ो उस चीज को। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम सीखें, पर जिस चीज को सीखो उसको बहुत इंटरेस्ट से सीखो। और इंटरेस्ट जगाना किसका काम है? टीचर का। क्योंकि ये होता है कि माँ बाप तो होते हैं तो आपको बड़ा करके छोड़ देते हैं कि उनका गोल यही होता है कि आप एक अच्छी सी इनकम अर्न करने लगो और अपना और अपनी आने वाली फैमिली का पेट पाल सको। ये उनका मेन गोल होता है, राइट? उनके पास ऐसा समय ही नहीं है कि वो आपकी प्रतिभा को परखे। वो कहाँ जाते हैं? एक स्टीरियोटाइप हमारे जो स्टडीज हैं या फील्ड्स हैं उसके अंदर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, जो स्टीरियोटाइप फील्ड्स हैं उसके अंदर जाएंगे कि इसमें से अगर ये कुछ बन गया, गवर्नमेंट जॉब ले ली, तो इसकी लाइफ सिक्योर है, ये सही हो गया, बस मेरे को इतना ही करना है। पर सोचो कि अगर कोई नीरज चोपड़ा बन गया तो कितना नाम, कितना पैसा, कितनी शोहरत और कितनी अच्छी ब्राइट करियर। बट उसके लिए माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये अपने काम के 12, 15, 16 घंटों में से 10 घंटे स्पोर्ट्स को दे रहा है तो ये गलत नहीं कर रहा है, इसको देने दो। पर हो क्या रहा है? अरे भाई स्पोर्ट्स एक आध घंटा फ्रेश होने के लिए कर ले, स्पोर्ट्स तो कोई करियर ही नहीं है। हाँ, क्रिकेट में चला जा अगर क्रिकेट में, तो बाकी किसी में कोई करियर नहीं है। सो ये जो मेंटालिटी है ना, स्टीरियोटाइप, वो बदलने का काम टीचर कर सकता है, क्योंकि वो देख सकता है कि इस बच्चे में कौन सी प्रतिभा है। तो मेरा तो ये जवाब है आपके लिए कि मैथ्स का जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सो उसमें मज़ा ही मज़ा है। आप जब फिल्म देखेंगे ना तो मेरा हर एक लेक्चर, जैसे कि मेरा पहला लेक्चर है, सो क्लास के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि अपनी बुक्स निकालो मैथ्स की और उसको एक बैग में बंद करो, चाबी लगा दो, चाबी को रख दिया ऊपर। ये चाबी आप तभी निकालोगे जब आपको खुद ये बुक खोलकर पढ़ने की इच्छा हो, तब तक चलो गार्डन में। और गार्डन में मैं उनको दुनिया भर का मैथ्स दिखाता हूँ। फूलों में मैथ्स है, बादलों में मैथ्स है, हर जगह पे मैथ्स है। तो मैं उनको मैथ्स दिखाता हूँ और तब बच्चों को पता चलता है कि अरे मैथ्स हर जगह पे है, हम मैथ्स से गिरे हुए हैं और फिर भी हम मैथ्स को नफरत करते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था, अब तो इंटरेस्ट आने लगा है। सो मेरा हर क्लास इस फिल्म में मजे का क्लास है, मैथ्स का नहीं, मैथमेजिक का क्लास है, मैजिक का क्लास है। सो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सबको इंटरेस्ट आता है, देखने वालों को भी आएगा। Wow, this was really nice at the right time. I will really dedicate this answer on 15th August on Independence of India. इंडिया में ये बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस मिलना। किससे? स्ट्रिक्ट टीचर्स से। जो ये स्टीरियोटाइप है, थियोरेटिकल नॉलेज है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बच्चा बेचारा एकदम वो हो जाता है। तो दिस विल बी अ नाइस चेंज फॉर द नेक्स्ट लाइफ एंड नेक्स्ट इयर्स। मूवी में धमाल तो बहुत दिखती है पर मैसेज भी है, इस लगता है।
सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है ये मूवी? सोसाइटी के लिए मैम बहुत ही क्लियर एक मैसेज है, एंड द मैसेज इज कि शिक्षा जो होनी चाहिए ना, वो बर्डन के उसके बिना होनी चाहिए, कोई भार नहीं होना चाहिए, कोई वेटेज नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इतने क्रिएटिव होते हैं और बाद में जाके इनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। और उसका एक ही रीज़न है एजुकेशन सिस्टम, जो उनको निचोड़ लेता है, उनको एक ही रास्ते पर जाने को मजबूर करता है। और इसीलिए शायद इतने ज़्यादा इंटेलेक्ट्स या ज़्यादा वो लोग हमें नहीं मिल पाते हैं जो एक हटके काम करते हैं और आगे जाते हैं। गिने चुने लोग होते हैं कि जो एक हटके पटरी से अलग चलते हैं। सो द क्लियर मैसेज इज कि टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना और उनको परखना और उन्हें हेल्प करना। Let's dedicate this film to Yes, 15th yes, August बिल्कुल, या इंडियन बिल्कुल। इंडिपेंडेंस जो आपने बोला, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत सही बात है कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं, इतने साल हो गए आज़ादी को, पर सही मायनों में आज़ादी तभी आएगी जब हम लोग इस सोच से भी आज़ाद हो जाएंगे कि हमें हमारे बच्चों को कुछ करवाना है फोर्सफुली। ये सोच जो है ना, बड़ी घातक है। और आप बोल रहे हो तो इस इंडिपेंडेंस डे पर ये ही हम संकल्प लेते हैं, हर मदर फादर या टीचर, कि हम इन जो फूल है ना छोटे छोटे, इनको उगने देंगे, अपने हिसाब से ग्रो करने देंगे, जहाँ जाना है जाने देंगे, और फिर उनको डिसाइड करने देंगे कि उन्हें क्या करना है। तो ये एक सोच से आज़ादी का ये पर्व हो सकता है। बात करने की तो मजा आ रही है, ब्रेक लेने का तो जरा भी मन नहीं है, पर इट्स टाइम फॉर ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक सून। Ladies and gentlemen, put your hands together for We International Founder, President, Chairman, Mr. Bharat Goradia, Bollywood star. Mr. Bharat Goradia with legendary singers from Indian music industry. He believes in spreading smiles over everyone's faces. Sports champion. The Dada Saheb Phalke Award and Bharat Gaurav Pride of India Award winner Mr. Bharat Goradia has been innumerably awarded across the globe for his outstanding work in the field of promoting Indian arts and culture all over the world. Welcome back to our show, Dollywood. Dollywood means Gujarati cinema. Dollywood तो स्लैंग लैंग्वेज है, स्लैंग में बोलते हैं, पर वैसे तो गुजराती फिल्म से गुजराती सिनेमा है. So let's take the regional cinema to USA and everywhere around the globe. तो इसके बाद में हम शौनक को पूछते हैं. शौनक राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है ये मूवी के, तो सब जानते हैं कि गुजराती सिनेमा है, तो would it be able to connect the English audience and the Hindi audience? Please tell me कि कैसे हम कनेक्ट हो पाए. जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एज यू सेड कि इट्स अ रीजनल सिनेमा, गुजराती सिनेमा, बट ये एक चीज़ है कि अभी रीजनल सिनेमाज भी बहुत अच्छे से आप देखें तो कई फिल्में ऐसी होती हैं, और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिन्हें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है. बेसिकली एक अच्छी चीज़ ये है कि ये फिल्म सबटाइटल के साथ है, इंग्लिश सबटाइटल्स आर देयर, सो हिंदी और इंग्लिश जो समझते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली फिल्म बन जाएगी. दूसरी बात ये है कि अगर हम सिनेमा को देखें तो इसमें कभी लैंग्वेज कनेक्ट नहीं करती है, कनेक्ट करते हैं कंटेंट, टॉपिक. तो जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये यूनिवर्सल है कि हर जगह पे, हर लैंग्वेज में, हर देश में टीचर्स हैं, हर देश में स्टूडेंट्स हैं, हर देश में स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. और ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो विषय हैं वो बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से, कि यहाँ पर भी यही हो रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत या कई जगहों पे बिगड़ रहे हैं, टीचर्स का वो स्थान नहीं रहा जो पहले होता था. ये आई थिंक यूएस में भी वही हो रहा है, हर एक जगह पे यही हो रहा है. सो
क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को समझ नहीं पाते हैं, या टीचर जो समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाते हैं। इस फिल्म में हमने ये दिखाया है कि रीजन यही है कि हम एक छोटी सी बात नहीं समझते हैं कि पहले अगर किसी भी चीज में मजा आने लगेगा तो वो चीज समझाने में या समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इट विल बी वेरी इजी टू एक्सप्लेन और टू अंडरस्टैंड। तो कभी भी वो बैरियर बीच में नहीं रहेगा। जब यहां से मजा, इंटरेस्ट चला जाता है किसी भी चीज में से, तब वो चीज कितनी भी अच्छी हो वो बोरिंग बन जाती है, हार्ड हो जाती है, कठिन हो जाती है। इसीलिए हम इस फिल्म के माध्यम से जो विषय दिखा रहे हैं ये यूएस की ऑडियंस को बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा, ये यूके की ऑडियंस को कनेक्ट करेगा, ये इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट करेगा। भले ही वो गुजराती न बोलते हो, हिंदी बोलते हो, हर एक के लिए ये चीज़ होगी कि ये विषय जो है ना सबको अपना लगेगा, क्योंकि ये आपको ले जाएगा नॉस्टैल्जिया में। जब आप स्कूल में थे, जब आप कोई मस्ती किया करते थे, जब आप किसी को परेशान करते थे, जब टीचर को चिढ़ाया करते थे, या टीचर्स के लिए भी नॉस्टैल्जिया होगा कि हाँ ऐसा एक स्टूडेंट तो मेरे क्लास में था, हाँ ऐसा स्टूडेंट मैंने पढ़ाया है, अच्छा ये स्टूडेंट होता तो कितना अच्छा होता। सो ये जो है ना, ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं, रिलेवेंट है हर एक लैंग्वेज के लिए। सो सबके लिए है। और ये फिल्म खास करके ज़्यादा करके हम यही बोलते हैं कि ये सिर्फ पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखने चाहिए, माँ बाप के साथ भी देख सकते हैं। तो ये तो है ही है, ये बहुत क्लीन फिल्म है। कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप बच्चों के साथ ना देख सके या बच्चे अपने माँ बाप के साथ ना देख सके। पर खास तौर पर ये फिल्म पूरी क्लास को एक साथ देखने जानी चाहिए, टीचर्स को लेके एक साथ देखने जानी चाहिए, और टीचर स्टूडेंट को बाजू में बैठ के देखना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि कहाँ कुछ छूट रहा है, स्टूडेंट के हिसाब से क्या कम हो रहा है, टीचर्स के हिसाब से क्या कम हो रहा है, और दोनों अगर मिल जाए तो क्या ब्रिलियंट और ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा किसी भी देश का, किसी भी स्कूल का, किसी भी स्टूडेंट का या टीचर का। सो ये हमारा बेसिक है कि सबटाइटल के साथ है, मजे से देखिए। 2.5 घंटे की ये फिल्म है, पर 2.5 घंटे में आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, मैसेज मिलेगा, वैल्यूज मिलेगी, रोमांस भी मिलेगा देखने को, गाने बहुत अच्छे हैं, गाने सुनने को मिलेंगे एक गुजराती टच के साथ। एक है जो सूफी फ्लेवर का गाना है, एक जय माँ भवानी है, वो आपका कनेक्ट कर देता है गॉड के साथ, माँ भवानी के साथ। तो वो एक फोक और स्पिरिचुअल गाना है। एक है उड़ू आकाशे जो एक हल्का फुल्का बच्चों वाला गाना है, और एक है केवारे भराना, सो एक कॉमेडी सॉन्ग है। सो बहुत सारे गानों के भी हमने अलग अलग फ्लेवर्स रखे हैं। बहुत सारी मस्ती है, बहुत सारी कॉमेडी है जो आपको देखने को मिलेगी। ये देखने को मिलेगा कि किस किस अलग अलग तरीकों से टीचर्स को स्टूडेंट परेशान करते हैं। ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे टीचर्स इन स्टूडेंट से, इन शैतानों से निपटते हैं, और कैसे बिना कुछ ज़्यादा किए कैसे उनको लेते हैं। एक लाइफ फिलोसॉफी देखने को मिलेगी। सो ये सब कुछ है जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं। तो ये हर एक के लिए फिल्म है। शौनक, I can't wait to see this movie. I am so excited. आप मेरे को डायलॉग बता दो एक। डायलॉग्स तो देखिए, डायलॉग्स 2-3 तरीके के हैं। जैसे कि कुछ है जो वैल्यू बेस है, जैसे कि ये एक डायलॉग है हमारी फिल्म का कि भणવું પડે છે એટલા માટે નહીં, ભણવું ગમે તો ભણો, मार्क्स માટે नहीं, नॉलेज માટે ભણો। अरे वाह, ये एक डायलॉग है। और कुछ है जो बहुत ही मिस्चीवियस धमाल वाले हैं, जैसे कि म्यूजिक के टीचर पूछते हैं कि जगा बोल संगीत में कितना सुर होय। जगा कहता है संगीत में, हाँ संगीत में महिषासुर, भैंसासुर, बकासुर અને છેલ્લો સુર સસુર। Oh my God! ये बच्चे तो बच्चे यार, आप कैसे मैनेज कर ले तो। क्योंकि ये एक्चुअल जब हम शूटिंग की अगर बात करें ना, तो ये बच्चे एक्चुअल मेरे स्टूडेंट, मैं कॉलेज में पढ़ा था तो मेरे स्टूडेंट थे। सो ये एक्चुअल वैसे हैं जो फिल्म में दिखाया गया है। क्या बात है। हाँ, ये एक्चुअल बहुत सारे प्रैंक्स किए हैं मैम इन लोगों ने शूटिंग के दौरान। बहुत सारे प्रैंक है। हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे प्रैंक। अच्छा, तो प्रैक्टिकली वो करते थे, प्रैक्टिस करते। उसका एक रीजन था कि ऑफ स्क्रीन कर ले ताकि ऑन स्क्रीन रीटेक कम हो, क्योंकि वहां अगर इनको मस्ती सूझी तो हम क्या करेंगे। एक बताओ मेरे। एक टेक है जिसमें ये बच्चे है ना, रात को एक अच्छा लड़का है सीधा साधा उसमें, और वो बहुत पढ़ाकू है, तो ये सोचते हैं कि इसको जरा सीधा करना पड़ेगा। तो ये जो डस्टर गैंग है हमारी, ये डस्टर गैंग के 5 लोग हैं। डस्टर गैंग। ओह माय गॉड। डस्टर गैंग का काम ये है कि टीचर चौक से जो भी लिखे हमें डस्टर बन के सब मिटा देना है।
एक ही लक्ष्य है, टीचर को निकालो और मस्ती करो, हमारा राज होना चाहिए। तो ये डस्टर गैंग के जो 5 बच्चे हैं ना, वो रात को उसको उठाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, और जब वो आंख खोलता है तो उसके मुंह बंधा हुआ है और वो कहीं अंधेरे में वो डर जाता है, और फिर उसको बोलते हैं कि बेटा बोल, હવે તે કોઈ દિવસ વિમાન ઉડતું જોયું છે? એટલે પેલો કે જોયું છે ઉપર, ના तू विमान बनीने उड़वा मांगे थे, तो क्या वो उसको उठाते हैं, चारों 2 हाथ पकड़ते हैं, 2 पैर पकड़ते हैं और उसको ले जाते हैं, और सामने एक बड़ी डस्टबिन है जिससे वो टकराने वाला है, उसके ऊपर से ले जाते हैं। सो ये सीन में तो करना था, पर ये उस लड़के के साथ उन लोगों ने वैसे भी किया। My God, हाँ, सीन हो गया। फिर वो बोले कि अभी तो नहीं हुआ है ना सर, हाँ, नहीं फिल्म छोड़ दिया। हाँ सर, ये तो सर नहीं हुआ ना, मैं भी समझ गया, मतलब हाँ अभी तो बाकी है, ये फिर से करना पड़ेगा 2-3 बार। वो रियली रोने लगा वो बच्चा, क्योंकि वो उसको उठा के यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वो लगा सर वो नहीं करो, एक्टिंग नहीं कर। और फिर उन लोगों ने बोला हम तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे भाई, शूट तो कब का हो गया, नेचुरली हो गया ऐसा। so, ऐसे बहुत सारे प्रैंक हम लोग करते थे, क्योंकि थे बच्चे सारे। और एक बार तो सीरियस वो हो गया था, हमने अपनी हीरोइन को रुलाया था, अलीशा को। हाँ, ये बात सही नहीं है। क्या हुआ था, एक तो उसको 3 बुखार था, 3 टेम्परेचर था, तो फिर भी वो बोले हम शूट करेंगे, वो उसकी बहुत बड़ी बात थी कि हम करेंगे, और बहुत एक अच्छा सीन था। तो मेरे साथ जो मेरे को डायरेक्टर हैं डॉक्टर विक्रम पंचाल, सो वो सीन ऐसा था, फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट उसको कंडक्ट करना था, जिसमें एक वो रियली 10 किलो का एक गोला है, एक बॉल है, जिसको यहाँ से वहां छोड़ती है, और मैं खड़ा हूँ, पर वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो बॉल मुझे हिट नहीं करेगी, वो मेरे यहाँ से टच करके चली जाएगी अगर कैलकुलेशन सही है तो। सो वो एक्सपेरिमेंट करना था। अब उसको बुखार था, उसको डर ये था कि मुझे बुखार है, मैं अगर जोर से फेंक दूंगी तो क्या होगा। तो विक्रम सर उसको समझाने के लिए गए। अब विक्रम सर गए वहां पे, और फिर वो पकड़ के खड़ी थी वो बॉल को, और सर समझा रहे थे, और हमने पीछे से जाके सिर्फ ऐसा किया, ऐसा करके टच कर दिया, उसके हाथ से बॉल छूटा और गया विक्रम सर की ओर। कैलकुलेशन सही था, तो विक्रम सर को लगा नहीं, पर हमने ये दिखाया कि बहुत लगा भाई, बहुत लगा। अरे रे विक्रम सर बैठ गए, वो करके बैठ गए। फिर हमने बोला अरे रे क्या हुआ, जल्दी ये लाओ वो लाओ, और वो रोने लगे, अरे मेरे से ही हो गया, मेरे से ही हो गया, मेरे से ही हो गया। फिर हमने बताया कि इतना भी नहीं लगा, सिर्फ छू के गया है, पर मेरे को परेशान कर रहे थे। तो ये सब प्रैंक भी हमने किए थे, और तो बैक स्टेज भी ये सब चल रहा था, तभी स्क्रीन पे निकल के आता था, तभी स्क्रीन पे निकल के आता था। ये सब तैयारी। और फिल्म में भी ऐसे काफी सीक्वेंसेस है, जैसे कि एक सीक्वेंस है जो मैं जो पार्ट टाक का मेरा जो कैरेक्टर है, वो बच्चा है तब कैसी शरारत करता था। तो उसके टीचर उसको पनिशमेंट देने के लिए नॉर्मली जो रूरल जो एरियाज होते हैं उसके स्कूल्स में ऐसा करते हैं कि लड़कियों के बीच में बिठा देते हैं पनिशमेंट देने के लिए लड़के को। तो उसको बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है, और बाकी के लड़के उसके ऊपर हंस के गए, लड़की के बीच में बैठना पड़ा तेरे को। तो वो पनिशमेंट सर ने उसको दिया। अब सर ने उसको दिया, सो वो सोचता है कि अभी सर को कैसे मैं पनिशमेंट वापस दूं। हाँ, तो वो बाहर जाता है और पानी पूरी वाला खड़ा है, उसके पास से मैश पोटैटोज जो होते हैं उसके पास, वो पूरी में भरे, वो पूरा वो चुरा लेता है और पूरा खा जाता है, जब तक पेट फटने ना लगे वहां तक खाता है। और फिर आकर क्लास में बैठता है और फिर वो पार्ट मारता है। ओह माय गॉड। और जब वो पार्ट मारता है तो क्या होता है, इतनी जोर से, और टीचर बोलता है कि ये, बोले सर मेरा क्या कंट्रोल है, ये तो अपने आप हो रहा है, मैं क्या करूं। और होता ये है कि उसकी स्मेल से, बैड स्मेल से सारी लड़कियां हट जाती है, और फिर वो सर के सामने बोलता है कि सर अब बोलो, अब मैं अकेला बैठा। राइट, तो ये ऐसी मजाकिया सिचुएशंस फिल्म में बहुत है। अरे बाप रे, वो बेल चुरा, तो देखना ही पड़ेगा यार। एक बार टीचर उसको बाहर निकाल देते हैं कि क्लास से बाहर निकल जा। बोले अच्छा मेरे को क्लास से बाहर कर रहे हो, ठीक है। वो जो बेल, पहले के स्कूल में ये इलेक्ट्रॉनिक बेल नहीं होते थे, वो घंटा होता था बेल, बड़ा वाला। सो वो बेल होता है ना, वो चुरा के डस्टबिन के अंदर रख के उसके ऊपर कचरा रख देता है। अब ये हो रहा है कि लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा है, बेल बजे तो खत्म हो, और सब परेशान है कि बेल का, और वो मजे से देख रहा है कि मुझे बाहर बिठा, अब जो अंदर वाले वो झेलो, चल ही रहा है लेक्चर, चल ही रहा है। क्या बात है यार। ये लड़के कहाँ से लेके आए यार? ये लड़के मैम हमने बहुत सारे ऑडिशन लिए, और जो सबसे छोटा वाला है ना, वो 5-6 साल का था, जो सिर्फ बोलना सीखा, वो वहां से लेकर ये 22 साल तक के पूरे एक जनरेशन था, एक लड़के थे जो अलग अलग हमने ऑडिशन लिया, और उनको ऑडिशन में भी यही बोला कि कितनी धमाल कर सकते हो हमें करके दिखाओ।
फिर हम सिलेक्ट करेंगे। अरे माय गॉड, स्क्रिप्ट नहीं दिया उन लोगों को। सुपर। आप लोग धमाल करके दिखाओ, क्या कर सकते हो, कोई क्या जोक क्रैक करो, बात कुछ है। करो, कॉमेडी करो, फिर हमने सिलेक्ट किया उनको। बहुत मेहनत की है ये पिक्चर के बाद, तो इसलिए इट्स सो एंटरटेनिंग। थैंक यू मैम। तो ये थैंक यू शौनक फॉर सच इंटरेस्टिंग टॉक्स। और आपने थोड़ी लीक कर दी बातें। हाँ, मैंने लीक कर दी बातें, पर यही मजा है ना मैम OTT का, शेवारूमी का, कि मैं लीक करूँ ना तो भी लोग देखेंगे, क्योंकि ये शेवारूमी पे है और इतने सारे लोगों ने सुना है। सो मैंने वही लीक किया है जिससे आपको थोड़ा वो एंजाइटी हो, थोड़ा एक्साइटमेंट हो कि ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। क्या बात है, और इससे ज्यादा भी है इससे बहुत ज्यादा है मैम। ये फिल्म का मैंने अभी एक ट्रेलर समझ लो कि आपको 2-3 मिनट का बताया है, ऐसा 2.5 घंटे का फिल्म है पूरा। सो वो आपको बहुत एंटरटेन करेगा। शेवारूमी के ऊपर है, ऑलरेडी 5 अगस्त को ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मैम के इन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ, उनसे ये बातें हो रही है। और एक रीजनल सिनेमा जिसकी स्ट्रेंथ हम दिखाना चाहते हैं कि गुजराती में बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ। अभी एक गुजराती फिल्म ने लास्ट ईयर नेशनल अवार्ड जीता, पूरी हिंदी फिल्मों के बीच, सारी लैंग्वेजेस के फिल्म के बीच गुजराती फिल्म ने जीता। तो गुजराती फिल्में बहुत अच्छी बन रही है, जस्ट आपकी ज़रूरत है, आप उसको देखो और कमेंट्स की बारिश कर दो। जैसी लगे वो बोलो, खराब लगे ना तो लिखना बहुत खराब फिल्म है, मुझे नहीं अच्छी लगी, पर जो अच्छी लगे तो प्यार से लिखना बहुत अच्छी थी, सब देखें। जितने लोग ज़्यादा देखेंगे हमें उतनी हिम्मत मिलेगी। ऐसे शोज हम और करते रहेंगे और ढोलीवुड का ये जो शो है जिसका नाम हमने रखा है वो और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा, आपको और ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगी। Don't forget to see Teacher of the Year. शेवारूमी पे। Thank you very much audience for joining us. फिर मिलते हैं एक दूसरे सितारों के साथ. Don't forget to see.